What about others? Okay, so last class we have discussed about Carnot cycle, air standard cycle, how we can define air standard cycle and air standard efficiency. Then we have seen formula for the Carnot cycle, efficiency formula for the Carnot cycle, its working principle, different processes, and what are the complications involved there in practical, या or you can say in the possibility of Carnot cycle. हमने बताया भी था कि Carnot cycle is practically not possible because of two reasons. Because it is very difficult to maintain the isentropic process, okay, and isothermal processes. मतलब एक ही स्ट्रोक में दो डिफरेंट स्पीड पिस्टन का नहीं हो सकता. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. लेट मी शेयर द पेज फर्स्ट. ये हम लोगों ने स्टेजेस डिस्कस किया था, इफिशिएंसी डिराइव किया था. 1 minus T lower upon T higher, and then we have discussed about this, why it is impossible to attain, or why Carnot cycle is practically not possible. ठीक है, ये पीडीएफ हमने शेयर किया हुआ है ना आप लोग को फिफ्थ मॉड्यूल का. Yes, sir. No, नहीं किया. एक बार देख लीजिए फाइल्स में. ओके, आई विल शेयर इट. एक्चुअली हमने स्टार्ट ही किया है अभी, इसलिए नहीं किया होगा. ठीक है, इसको हम शेयर कर देंगे इस पीडीएफ को टोटल आज. अच्छा, टॉपिक मैंने डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो मैंने शेयर किया था. ओके, ओके. सो नेक्स्ट साइकिल इज कांस्टेंट वॉल्यूम और ऑटो साइकिल. पेज विजिबल है आप लोगों को? yes, sir. Okay, you see what is constant volume or Otto cycle? You know, Otto cycle or constant volume cycle, all petrol engines, whether it is 4-stroke engine or 2-stroke engine, okay, all petrol engines are based on Otto cycle, or you can say the working cycle for all petrol engines are Otto cycle. हमारे जितने भी पेट्रोल इंजन्स हैं, पेट्रोल बेस्ड इंजन्स हैं, all are working on this Otto cycle. अब इसमें देखिए प्रोसेसेस क्या है, इसका वर्किंग भी एक्सप्लेन करेंगे आपको. 1 to 2 it is reversible adiabatic compression process. 2 to 3 it is constant volume heat addition process. 3 to 4 it is reversible adiabatic expansion process, and 4 to 1 it is constant volume heat rejection process. ठीक है, क्लियर? तो ये इसका वर्किंग होता कैसे है, ये पहले हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइकिल बना हुआ है. हम आपको वर्किंग यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं. Suppose you just imagine about your internal combustion engine which is based on petrol. ठीक है, suppose this is your engine. ठीक है, ये इंजन का सिलेंडर है. okay, and here initially suppose piston is at this particular position, and this is piston pin through which crank connecting rod is connected, and this is crank. This is crank pin through which connecting rod is connected to the crank, and this is our crank shaft which is need to be rotated. Okay, here it is inlet valve, inlet valve you can say, or intake manifold you can say. Here it is outlet manifold or exhaust you can say.
This is inlet valve, exhaust valve, spark plug, and this is piston. इसी का माइक ऑन है. This is piston. Now you need to understand the working of your IC engine, जो कि पेट्रोल पे बेस्ड है. तब आपका ये इस ऑटो साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ठीक है. अब आप हमको ये बताइए कि सपोज यू नीड टू स्टार्ट एन इंजन, देन आप फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? सपोज आपको अपने बाइक का इंजन जो कि पेट्रोल बेस्ड है उसको स्टार्ट करना है. व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? Sir, either we kick it, start Okay. through kick or सेल्फ स्टार्ट. start. सेल्फ स्टार्ट. ओके, गुड. ठीक है. ओके, तो हम लोग एक एक करके वर्किंग समझेंगे और करस्पॉन्डिंग पीवी और टीएस डायग्राम को यहाँ पे प्लॉट भी करेंगे. इसलिए मैंने इसको बना लिया है यहाँ पे. टेम्परेचर एक्सिस एंड दिस इज एंट्रोपी एक्सिस, मीन्स पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम बोथ वी नीड टू प्लॉट. देखिए, सपोज वी नीड टू स्टार्ट एन इंजन, देन वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू आइदर किक और सेल्फ स्टार्ट. तो सेल्फ स्टार्ट हम क्यों करते हैं? ताकि हम इनिशियल टॉर्क इस शाफ्ट को दे सकें. क्योंकि देखिए, हमको क्या करना है, हमको इस पिस्टन को, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन इस सिलेंडर के अंदर क्रिएट करना है. मीन्स पिस्टन नीड्स टू बी रेसिप्रोकेट विद इन दिस इंजन सिलेंडर. ये सिलेंडर है आप, जो इंजन सिलेंडर आपको दिखाई देता है. ठीक है. इसके चारों ओर फिन्स लगे होते हैं, एक्सटेंडेड सर्फेसेस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है. तो ये हमारा सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल बॉडी है. इट टू बी रेसिप्रोकेट विद इन द इंजन सिलेंडर. अब देखिए यहाँ पे फ्यूल और एयर, इनलेट वाल्व क्या है? इनलेट और वाल्व की हेल्प से हमारा कार्बोरेटर से फ्यूल और एयर मिक्सचर यहाँ पे हमारा इनलेट वाल्व के थ्रू इंजन सिलेंडर के अंदर आएगा. You all know about carburetor. Carburetor is mostly used in petrol engine. It is used to prepare the fuel and air mixture in the required proportion. ठीक है. आप इंजन के जस्ट ऊपर देखोगे कार्बोरेटर हो, मतलब फ्यूल टैंक से जो फ्यूल होगा वो कार्बोरेटर को सप्लाई होगा. कार्बोरेटर में एयर का सप्लाई भी रहता है, और कार्बोरेटर जिस रिक्वायर्ड रेशियो में एयर और फ्यूल को सप्लाई करना है, उस रिक्वायर्ड रेशियो इज ओके. हाउ दिस फ्यूल एंड एयर बोथ आर इन गैसेस स्टेट, क्योंकि फ्यूल को भी आप गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तभी वो एयर के साथ मिक्स होता है. जो फ्यूल आप स्टोर किए हुए फ्यूल टैंक में वो लिक्विड स्टेट में है, और कार्बोरेटर में आप उसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करके आप इसको एयर से मिक्स करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों एयर और फ्यूल मिक्सचर, क्वेश्चन ये है कि हाउ दिस एयर एंड फ्यूल मिक्सचर विल इंटर इनटू दिस इंजन सिलेंडर. हियर सपोज ये फ्यूल एंड एयर मिक्सचर जो कार्बोरेटर में सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो ये फ्यूल और एयर मिक्सचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, सपोज 1 बार पे है, तो ये इंजन सिलेंडर में कब इंडक्ट कर सकता है, कब ये इंटर कर सकता है? व्हेन देयर इज लो प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर. अगर, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड फ्लो, गैस फ्लो, ठीक है, लिक्विड फ्लो हो या गैस फ्लो हो, दोनों के लिए जो ड्राइविंग पोटेंशियल है which can cause the flow of this substance to take place is pressure difference. जैसे करंट फ्लो के लिए ड्राइविंग पोटेंशियल डिफरेंस है, हीट ट्रांसफर के लिए ड्राइविंग पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस है. इन द सेम वे फॉर लिक्विड और गैस फ्लो द ड्राइविंग पोटेंशियल इज द प्रेशर डिफरेंस. इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर, इनलेट पे प्रेशर, और इस सिलेंडर के अंदर अगर प्रेशर डिफरेंस हम क्रिएट कर दें तो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर विल इंटर इनटू दिस इंजन सिलेंडर. ये समझ में आया? Yes, sir. Okay, now the question is how to create low pressure inside the engine cylinder. तो आप जो यहाँ पे आपने क्रैंकिंग किया है, या फिर जो आपने किक किया है, या सेल्फ स्टार्ट किया है. सेल्फ स्टार्ट में क्या होता है? ये जो हमारा शाफ्ट है, ठीक है, इसी शाफ्ट पे एक स्टार्टिंग मोटर लगा होता है. ठीक है, एक स्टार्टिंग मोटर लगा होता है. आप क्या करते हैं सेल्फ स्टार्ट से? इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. सेल्फ स्टार्ट मतलब बैटरी के स्विच को इससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी को आपने, बैटरी के सर्किट को कंप्लीट किया, तो उसने क्या किया, इसको करंट सप्लाई किया इस स्टार्टिंग मोटर. एंड जैसे ही स्टार्टिंग मोटर करंट सप्लाई हुआ इसमें, स्टार्टिंग मोटर विल रोटेट दिस शाफ्ट.
ये शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो ये क्रैंक कनेक्टिंग रॉड को नीचे की तरफ मूव कराएगा, नीचे ऊपर। इसकी वजह से पिस्टन हमारा अप एंड डाउन मूव करेगा। तो या तो आप सेल्फ स्टार्ट करके उसको स्टार्टिंग मोटर को एनर्जी दीजिए, या फिर आप किक करके, ठीक है, किक करके भी आप यही काम करते हैं, आप जस्ट इसको इनिशियल टॉर्क देते हैं जो ये शाफ्ट है, ताकि हमारा पिस्टन एटलीस्ट मूव कर सके इन द सिलेंडर। जैसे पिस्टन को इस पोजीशन से इस पोजीशन में मूव करना है, तो अपर मोस्ट पोजीशन को हम बोलते हैं TDC, टॉप डेड सेंटर। ओके, upper most position up to which piston has to reciprocate within the engine cylinder is termed as top dead center, TDC, and bottom most position up to which the piston needs to be reciprocate within the engine cylinder is known as BDC, bottom dead center. ओके, इस लिमिट के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लो प्रेशर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये पिस्टन ऊपर TDC से BDC की तरफ आए तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा ना, जैसे हैंडपंप में होता है। जैसे हैंडपंप में होता है कि आपका ये पाइप है, ठीक है, पाइप है, आप जब हैंडल को प्रेस करते हैं डाउनवर्ड, तो ये क्या करता है, ये जो पिस्टन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड मूव करता है। हैंडल आप प्रेस करेंगे डाउनवर्ड, जैसे हैंडपंप होता है, तो ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, और अपवर्ड मूव करेगा तो ये ग्राउंड से इस वाटर को पुल करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेशर वैक्यूम हो गया, एंड बिकॉज ऑफ वैक्यूम ये वाटर ग्राउंड से इसमें इस पाइप में आ जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा। यही तो होता है ना हैंडपंप का कॉन्सेप्ट। Yes, sir. It means we need to create low pressure within this engine cylinder, and how we are creating this low pressure by moving piston from top dead center to bottom dead center। इसका मतलब है कि पिस्टन आपका टॉप से बॉटम की तरफ जब यहाँ मूव कर जाएगा, इस पोजीशन में मूव कर जाएगा, इस पूरे चैम्बर में आपका वैक्यूम क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, एंड बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर नाउ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर विल come inside the engine cylinder, and during that period this inlet valve will remain open। ये इनलेट वाल्व ओपन होगा और ये पूरा का पूरा सिलेंडर आपका फ्यूल और एयर से फिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ सिंस यू हैव स्टार्टेड दिस कनेक्टिंग मोशन ऑफ द पिस्टन, तो पिस्टन पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ये कंटिन्यूअस मूव करेगा क्योंकि आपने इसको इनिशियल टॉर्क दे दिया है। नाउ पिस्टन विल रेसिप्रोकेट कंटिन्यूअसली विद इन द इंजन सिलेंडर, अप एंड डाउन लाइक दैट। तो अब क्या होगा, तो ये जो स्ट्रोक हुआ व्हेन पिस्टन मूव फ्रॉम, ओके, दिस स्ट्रोक इज नोन एज 4 स्ट्रोक। पढ़े हो ना आपने, 4 स्ट्रोक इंजन क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज देयर आर 4 स्ट्रोक्स, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। तो ये हो गया सक्शन स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है, इट इज फर्स्ट स्ट्रोक। अब देखिए, अब पिस्टन अपवर्ड जब मूव करेगा तो व्हाट विल हैपन, ये इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा, इनलेट वाल्व भी बंद हो जाएगा, आउटलेट वाल्व भी बंद हो जाएगा। ठीक है, नाउ सपोज पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड, तो ये दोनों वाल्व आपके क्लोज हैं, दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम आप पढ़ोगे बाद में, ठीक है, वो कैम के थ्रू गवर्निंग होता है इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म के थ्रू। तो एक राइट मोमेंट पे ओपन होता है और राइट मोमेंट पे ये क्लोज हो जाता है। तो अभी क्या होगा, ये इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज हो जाएगा एंड पिस्टन विल मूव अपवर्ड। तो पिस्टन जब अपवर्ड मूव करेगा और ये दोनों वाल्व क्लोज हैं, तो जो भी एयर और फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर इंडक्ट हुआ है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, इट विल गेट कंप्रेस्ड। इसका क्या होगा, कंप्रेशन होगा ना, क्योंकि इसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, इट विल गेट कंप्रेस्ड। तो पीवी डायग्राम में जब आप बनाओगे तो ये 1 to 2 आप जब दिखाओगे तो 1, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक हमने एज्यूम किया है कि जब कंप्रेशन हो रहा है तो जो भी हीट हो रहा है, क्योंकि कंप्रेस होगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर राइज करेगा, एंड ड्यू टू राइज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर इट्स हीट इज नॉट ट्रांसफरिंग टू आउटवर्ड, इसलिए इसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोलते हैं। यू नो, ड्यूरिंग कंप्रेशन वॉल्यूम गेट्स डिक्रीजेस, 1 to 2 वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज होगा। तो टीएस डायग्राम में 1 to 2 को हम लोग
जाएगा, इसको ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होगा इस तरह से 1 to 2 ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेगा और चूंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन बोल रहे हैं तो एंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए व्हेन पिस्टन is at this particular position and air and fuel mixture are highly compressed state, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब स्पार्क प्लग क्या करेगा, इसमें स्पार्क क्रिएट करेगा इसी पोजीशन में कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मींस पिस्टन इज एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, दिस इज कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, अब स्पार्क प्लग जो होगा, स्पार्क प्लग को जो एनर्जी मिलता है, ठीक है, करंट मिलता है, वो बैटरी के थ्रू मिलता है, ये क्या करेगा, स्पार्क प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर, और स्पार्क जैसे ही प्रोड्यूस होगा इसके अंदर एक्सप्लोजन होगा, बिकॉज आपने क्या किया, आपने हाईली कम, जैसे अगर फ्यूल में आप एक मैच स्टिक से अगर उसमें फायर कैच करा दो तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा ना, तो उसी टाइप से है कि व्हेन एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इज एट हाईली कंप्रेस्ड स्टेट देन स्पार्क प्लग विल प्रोड्यूस स्पार्क थ्रू इट्स इलेक्ट्रोड एंड एक्सप्लोजन विल टेक्स प्लेस। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब पिस्टन उसी पोजीशन में था और उसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने हीट ऐड कर दिया, तो हीट जब आप ऐड करेंगे तो प्रेशर और बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ है, सीवियर प्रेशर फ्लक्चुएशंस विल बी देयर, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो 1 से 2 ये हुआ, 2 to 3 ये हुआ। ठीक है, और 2 to 3 को टीएस डायग्राम में आप ऐसे प्लॉट करोगे क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एक्सप्लोजन होगा, तो क्लियर। Yes, sir. इस ये जो नेक्स्ट स्ट्रोक था इसको हमने बोला कंप्रेशन, बिकॉज एयर एंड फ्यूल मिक्सचर गेट कंप्रेस्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ठीक है, कंप्रेशन के बाद आपका हीट एडिशन हुआ। अब जब एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, जब एक्सप्लोजन हो गया तो क्या होगा, नाउ प्रेशर एट द एबव, और यू कैन से प्रेशर एबव द पिस्टन विल बी वेरी हाई। तो अब ये क्या करेगा, जो एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन वॉट एवर प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ गैस, इट विल क्रिएट प्रेशर ओवर द पिस्टन। ये प्रेशर फोर्स क्रिएट करेगा इस पिस्टन के ऊपर, डाउनवर्ड फोर्स, एंड पिस्टन विल नाउ मूव टुवर्ड्स बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन जो है वो बॉटम की तरफ मूव करेगा, और जब बॉटम की तरफ मूव करेगा तो ये गैस क्या होगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन होगा ना गैस का, क्योंकि ये मूव कर रहा है नीचे पिस्टन, तो इट विल गेट मोर स्पेस टू एक्सपेंड। ठीक है, एंड अगेन ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन वी कैन एज्यूम दैट नो हीट इज received from the surrounding or no heat is lost to the surrounding। तो इस अगेन इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो ये 3 to 4 हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस 3 to 4 हो गया। तो एक्सपेंशन जब होगा तो आपको पता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो पीवी डायग्राम में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर भी अगेन डाउनवर्ड स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होगा इस तरह से। ठीक है, 3 to 4। ओके, अब क्या होगा, अब ये आ गया, अब पिस्टन जब मूव करेगा अपवर्ड, ठीक है, तो क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा। और वैसे भी एक चीज़ और है कि जब पिस्टन डाउनवर्ड नीचे आ जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड नीचे आ जाएगा तो ये गैस भी आपका एक्सपेंड होकर कूल होगा। ठीक है, कूल होगा, और कूल होने के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इस कूलिंग या हीट रिजेक्शन प्रोसेस को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं 4 to 1, क्योंकि हमें इस साइकिल को कंप्लीट करना है, हमें साइक्लिक प्रोसेस दिखाना है, इसलिए 4 to 1 हम इस तरह से दिखाते हैं कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो। क्योंकि जब हीट ये एग्जॉस्ट होगा ना इससे, तो एग्जॉस्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमें साइकिल को कंप्लीट करना है 4 to 1। तो 4 to 1 इट इज नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। मतलब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में था, अभी क्या हुआ, हमारा गैस इसके अंदर एक्सपेंड हो चुका है, और जैसे ही पिस्टन अपवर्ड मूव करना शुरू करेगा ये हमारा गैस निकलना शुरू करेगा बाहर। एक एग्जॉस्ट वाल्व विल ओपन एंड द बर्न गैसेस विल बी फोर्स्ड आउट, तभी तो फ्रेश एयर फिर से आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक है,
Clear? Yes, sir. These are the 4 cycles. 1 to 2 is reversible adiabatic compression. 2 to 3 is constant volume heat addition. 3 to 4 is reversible adiabatic expansion, and 4 to 1 it is constant volume heat rejection. हीट रिजेक्शन एक्चुअली एग्जॉस्ट के ही वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट है। 1 to 2 आपका पीवी डायग्राम में भी है, टीएस डायग्राम में भी है। तो आप देख सकते हो कि जब कंप्रेशन हुआ तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर राइज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। जब एक्सपेंशन हुआ तो प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, और हीट ऐड आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया था, ठीक है। तो आपको देखिए मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है आईसी इंजन का, कि आपको इनिशियल टॉर्क इंजन को देना है ताकि पिस्टन नीचे की तरफ मूव करे, एंड सो दैट द सक्शन विल बी क्रिएटेड विद इन द इंजन सिलेंडर, ओके, एंड ड्यू टू दैट सक्शन एयर एंड फ्यूल मिक्सचर विल इंडक्ट इनसाइड द इंजन सिलेंडर। अब जब नेक्स्ट स्ट्रोक होगा तो नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए आपको फिर से किक करने या सेल्फ स्टार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पावर स्ट्रोक में ये जो एक्सप्लोजन हुआ ना, ठीक है, एक्सप्लोजन को हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो पावर स्ट्रोक में आपको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिली है कि पिस्टन कंटिन्यूअसली इसके अंदर रेसिप्रोकेट करता रहेगा। यू नीड नॉट टू सप्लाई एक्सटर्नल, यू नीड नॉट टू सप्लाई पावर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, वो कंटिन्यूअसली मूव करता ही रहेगा। आपको सिर्फ इनिशियली आपको एनर्जी सप्लाई करना है, जो आपने किक करके या फिर सेल्फ स्टार्ट से सप्लाई किया। आफ्टर दैट you need not to supply any energy from the external source. Engine itself generates huge amount of energy which can be used as a surplus, क्योंकि एक फ्लाईव्हील भी लगा होता है। फ्लाईव्हील क्या करता है, उस एनर्जी को, जो सरप्लस एनर्जी है उसको स्टोर करता है, और जब भी डिमांड होता है उसको सप्लाई करता है। तो ये आपका वर्किंग ऑफ पेट्रोल इंजन है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग मैंने पीवी और टीएस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन की है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए यहाँ पे, क्योंकि अभी हम उस पेज में जाएंगे, वहाँ पे इफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव किया है, उसको देखेंगे। एनीवन? No, sir. No, sir. Okay. Okay, so let me close it. Okay, now ये जो लिखा हुआ है इसमें, इसको हम शेयर करेंगे। इसमें वही वर्किंग है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। हाँ, यहाँ पे जो सिलेंडर है ना, हमने इसको वर्टिकली प्लेस करके दिखाया। टॉप डेड सेंटर देखिए, जब भी हम इंजन की बात करेंगे तो हमें टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के रेफरेंस में बात करनी होगी। और जब सिलेंडर हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड होता है तो उसको आईडीसी और ओडीसी बोलते हैं, इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर। जब पिस्टन सिलेंडर आपका वर्टिकली प्लेस होगा तो उसको टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। बट यू नीड टू रिमेंबर कि पिस्टन को इसी वॉल्यूम में रेसिप्रोकेट करना है, एंड द वॉल्यूम विद इन विच द पिस्टन हैज टू रेसिप्रोकेट इनसाइड द इंजन सिलेंडर, उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। ये भी हम बता ही दे रहे हैं स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है। देखिए ये इंजन था, ठीक है, हमने बताया कि ये टीडीसी है, दिस इज योर टीडीसी, एंड बॉटम मोस्ट पोजीशन जो है उसको बोल रहे हैं बीडीसी, दैट इज बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन जो है हमारा इन्हीं दोनों लिमिट के अंदर रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है, इसी के अंदर रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। तो द वॉल्यूम विद इन विच दिस पिस्टन हैज टू रेसिप्रोकेट, इट इज नोन एज स्विफ्ट वॉल्यूम। और इतना वॉल्यूम हमारा यहाँ पे इंटेंशनली छोड़ दिया जाता है। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम दिस मच, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ये हम लोगों ने इसको इंटेंशनली छोड़ रखा है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ये तो हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम, एस डॉट वी स्वेप्ट वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं सी डॉट वी, दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम, ओके। वेरी स्मॉल क्लियरेंस वॉल्यूम इज लेफ्ट इंटेंशनली
वाई इट इज लेफ्ट इंटेंशनली, बिकॉज अगर पिस्टन को आप अलाउ कर देंगे कि इसके अपर मोस्ट पोजिशन तक सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है अप टू विच इट नीड्स टू रेसिप्रोकेट, देन व्हाट विल हैपन, ये वाल्व है ना, तो वाल्व का कुछ पोर्शन इसके अंदर प्रोजेक्टेड होता है, इनलेट वाल्व का भी, एग्जॉस्ट वाल्व का भी और स्पार्क प्लग का। सम पोर्शन ऑफ द स्पार्क प्लग, इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व will projected inside the cylinder। तो अगर पिस्टन को आप अलाउ करेंगे कि अप टू टॉप मोस्ट पोजीशन आप रेसिप्रोकेट करने के लिए अलाउ करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, इट विल स्ट्राइक विद दिस प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द वाल्व्स एंड स्पार्क प्लग, सो इट में डैमेज। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ देते हैं। अगर हम टोटल वॉल्यूम बोले क्लियरेंस सिलेंडर का, तो टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का ये पूरा का पूरा वॉल्यूम हो गया, लेकिन पिस्टन रेसिप्रोकेट कहाँ कर रहा है, पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है सिर्फ इतने वॉल्यूम में, दैट इज VDC एंड TDC के बीच में। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। द वॉल्यूम विद इन विच द पिस्टन इज रेसिप्रोकेटिंग इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम, एंड द लीनियर लेंथ which the piston is traveled is known as stroke length L। जो लीनियर लेंथ ट्रेवल करेगा उसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। अब आप देखिए, जैसे आप बोलते हो ना मेरे बाइक का इंजन 125 सीसी है या 150 सीसी का मतलब क्या हुआ, सीसी किसका यूनिट होता है, सीसी किसका यूनिट, वॉल्यूम का। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो बोल रहे हो कि 125 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, इसी को बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। और ये जितना ज़्यादा होगा उतना पावर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 150 सीसी है ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, मतलब इतना वॉल्यूम पिस्टन ट्रेवल कर रहा है इंजन सिलेंडर के अंदर, बट द टोटल वॉल्यूम विल बी मोर देन द स्वेप्ट वॉल्यूम, बिकॉज इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा, तब जाके टोटल वॉल्यूम निकलेगा। क्लियरेंस वॉल्यूम का Did you understand this? देखिए, the volume which the piston is traveled within the engine cylinder is known as swept volume, and the volume which is left intentionally to avoid the collision between the piston and the projected part of the valve and spark plug is known as clearance volume। जो आप CC बोलते हैं, that CC is your swept volume, मतलब पिस्टन सिलेंडर के अंदर उतना वॉल्यूम स्वेप्ट कर रहा है या कवर कर रहा है, और जितना ज़्यादा स्वेप्ट वॉल्यूम होगा उतना इंजन का पावर होगा, यही बोला था मैंने। क्लियर? यस सर। ओके, सो लेट अस मूव टू द पेज। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया भी गया है कि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, तो ये जो वॉल्यूम है 1 to 2 में कंप्रेस हुआ, मीन्स पिस्टन नीचे से ऊपर मूव किया, 3 to 4 में फिर पिस्टन अप से डाउन मूव किया, तो ये जो वॉल्यूम है जिसके अंदर पिस्टन बार बार रेसिप्रोकेट कर रहा है, इसको बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम विच इज लेफ्ट इंटेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम इज नोन एज टोटल वॉल्यूम। ठीक है, बाकी वर्किंग वही है जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 1 से 2 में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, 2 to 3 में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है, 3 to 4 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एंड 4 to 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, नाउ you see how can we derive formula for the efficiency। you know, efficiency means it is work done। ठीक है, efficiency, थर्मल efficiency का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, वर्क डन बाय हीट सप्लाई। वर्क डन क्या होता है, अब आपको इस प्रोसेस में पूरे कुछ नहीं करना है, आपको इसमें सिर्फ ये देखना है कि हीट सप्लाई कहाँ हो रहा है और हीट रिजेक्ट कहाँ हो रहा है। आप बताइए, हीट सप्लाई कहाँ हो रहा है, हीट रिजेक्ट कहाँ हो रहा है, अभी उन्हें एक्सप्लेन किया है। इन विच सर 1 से 2 से 3 में हीट सप्लाई हो रहा है। यस, 2 to 3 में हीट सप्लाई हुआ है कांस्टेंट और वॉल्यूम 4 पे, to 1 में रिजेक्ट हो रहा है। 4 to 1 में हीट रिजेक्ट हुआ है, गुड। बट हियर यू कैन सी the supply of heat 2 to 3 is at constant volume, because during 2 to 3 volume is constant, and in the same way during heat rejection also the volume was constant। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
CV टाइम्स T3 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस जो उस प्रोसेस में होगा, और हीट रिजेक्टेड में क्या हो जाएगा CV टाइम्स T4 माइनस T1। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में 2 to 3 में हीट सप्लाई हुआ है, तो CV टाइम्स T3 माइनस T2, यहाँ से देखिए TS डायग्राम में CV टाइम्स T3 माइनस T2 ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हो जाएगा, और CV टाइम्स T4 माइनस T1 जो होगा वो हीट रिजेक्टेड हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर? हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मेन ध्यान रखना है आपको। क्योंकि अब आपको जब फार्मूला, आप इफिशियंसी का फार्मूला लिखेंगे तो आप इफिशियंसी क्या लिखेंगे? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, एंड यू नो वर्क डन इज इक्वल टू हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। तो यहाँ पे आपने दोनों का फार्मूला पुट कर दिया, हीट सप्लाई CV T3 माइनस T2 माइनस हीट रिजेक्टेड CV T4 माइनस T1, ये फार्मूला आपने पुट कर दिया। अब इफिशियंसी के फार्मूले में दोनों की वैल्यू रखिए, वर्क डन और हीट सप्लाई दोनों की, तो आप देखोगे कि CV कॉमन मिलेगा, क्योंकि हीट एडिशन एज वेल एज रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो CV कांस्टेंट मिलेगा, तो उसको आप कट कर दीजिएगा। तो आपका जो फाइनल यहाँ टेम्परेचर के टर्म में एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है? इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके कंप्रेशन रेशियो के टर्म में इसको हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है? अब कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो होता है ये किस वॉल्यूम में आपने इसको कंप्रेस किया है, ठीक है? 1 सेकेंड। Okay, so here you see हम लोग को कंप्रेशन रेशियो देखना था। कंप्रेशन रेशियो हम बोलेंगे V1 बाई V2 इज टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, मतलब किस वॉल्यूम में आप उसको, किस रेशियो में आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, ठीक है? तो V1 मतलब टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम को हम कंप्रेशन रेशियो, यहाँ लिखा भी हुआ है देखिए, कंप्रेशन रेशियो RC और R V1 बाई V2। इन द सेम वे एक्सपेंशन रेशियो किसको बोलेंगे? एक्सपेंशन रेशियो मतलब जिस रेशियो में आपने उसको एक्सपेंड किया, दैट इज V4 माइनस V4 अपॉन V2, ठीक है? तो इस केस में ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो के इक्वल ही होता है, क्योंकि जिस रेशियो में आपने उसको कंप्रेस किया है V1 बाई V2, सेम रेशियो में आप उसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि 4 1 के इक्वल है और V3 V2 के इक्वल है, क्योंकि 2 to 3 और 4 to 1 दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम V1 पे होगा वही V4 पे होगा, जो वॉल्यूम 2 पे होगा वही वॉल्यूम, ठीक है? तो आप यहाँ बोल सकते हो कि कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो की, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि कंप्रेशन रेशियो इज V1 बाई V2, एक्सपेंशन रेशियो इज V4 बाई V2। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन हमारा आया इक्वेशन नंबर 1, टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, उसको हम
टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो डिराइव। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्योंकि आपको पता है 1 to 2 और 3 to 4 ये दोनों प्रोसेस क्या है, और एनी रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस in temperature and volume we know this correlation. This correlation is valid only for the reversibility of process, which is 1 to 2 and 3. So 1 to 2 can apply this relation temperature and volume. This T2 by T1 equals to 1. ये 1 to 2 के बीच में हम देखेंगे rest T2 by T1 is equal. So your voice is breaking. Nothing is audible. T2 terms of T1. Excuse me, sir. ये गामा हेलो और यस सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू है। ये पेज डिस्प्ले हो रहा है ना, पेज दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो क्लास चल रहा है, क्लास ठीक है। सो दिस इज T2 by T1 equals to V1 by V2 to the power gamma minus 1. Okay, this is the relation hold with for any reversible adiabatic process between temperature and volume. में किसी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या रिलेशन होता है, ये तो यू नो 1 to 2 इज योर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो फॉर T2 upon T1 इक्वल्स टू V1 by V2 to the power gamma minus 1 आप लिख सकते, दैट इज कंप्रेशन रेशियो। ओके, तो T2 क्या हो जाएगा, T2 विल बी T1 टाइम्स R to the power gamma minus 1। ओके, इन द सेम वे अगेन यू कैन अप्लाई द सेम कोरिलेशन 3 to 4 प्रोसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज 3 to 4 अगेन इट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक। So T3 by T4 is equal to V4 by V3 to the power gamma minus 1। और V4 by V3 क्या है, वो एक्सपेंशन रेशियो है, और एक्सपेंशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो के इक्वल ही है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ, क्यों? क्योंकि जिस वॉल्यूम लिमिट में कंप्रेशन हो रहा है उसी वॉल्यूम लिमिट में एक्सपेंशन भी हो रहा है। ठीक है, तो T3 क्या लिख सकते हैं आप इस इक्वेशन से, T3 विल बी इक्वल टू T4 टाइम्स R to the power gamma minus 1। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम यहाँ से इस इक्वेशन से T2 और T3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ पे आपका क्या है 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो T4 अपॉन T4 माइनस T1 को हम टच नहीं कर रहे, हम T3 को T4 के टर्म्स में, T2 को T1 के टर्म्स में फाइंड आउट करके और इसको कॉमन लेना चाहते, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया। आप देखो कि T3 T4 के टर्म में आपने यहाँ लिख दिया और T2 को T1 के टर्म में आपने लिख दिया, तो बस T2 और T3 की जगह इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। T3 in terms of T4 will be T4 R to the power gamma minus 1 and T2 in terms of T1 ये हो जाएगा T1 into R to the power gamma minus 1। ठीक है, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन R to the power gamma minus 1 इन ब्रैकेट T4 माइनस T1। ये T4 माइनस T1 कॉमन हो गया, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपको जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा इट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन R to the power gamma minus 1। and this is the formula, or you can say air standard efficiency of an Otto cycle in terms of compression ratio। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना, क्लियर? Yes, sir. यस सर। और इस फॉर्मूले से ये भी क्लियर है कि इफ वी इंक्रीज दिस कंप्रेशन रेशियो देन दिस होल टर्म विल बी डिक्रीज, एंड इफ दिस होल टर्म विल बी डिक्रीज योर एफिशिएंसी गेट्स इंक्रीज। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन रेशियो ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, तो आप इस एक्सप्रेशन से ही उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज दिस कंप्रेशन रेशियो
because this is in denominator. If we increase this compression ratio, this whole term will be decreased, and if the whole term will decrease means 1 minus this term is there, so efficiency will get increased. ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन आपको याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन भी पूछा जाता है कभी कभी साइकिल, या कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, आपको इसका न्यूमेरिकल भी करना है। तो अभी तो हम सारे साइकिल्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक बार साइकिल्स डिस्कस हो जाएगा तो इसके न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ठीक है, इन सबसे न्यूमेरिकल आता है, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देख रहे हैं, साइकिल देख रहे हैं, और करस्पॉन्डिंग जो फार्मूला है फॉर द efficiency that we are deriving. Okay, any question, any query? हीट सप्लाई, हीट रिजेक्शन समझ में आया? यस सर। Yes, sir. देखिए हर जगह जहाँ पे भी हम थर्मल एफिशिएंसी डिराइव करेंगे, एवरीवेयर थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला होगा वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। मींस वर्क डन क्या है? आउटपुट है, वट एवर आउटपुट यू आर गेटिंग एट द क्रैंक शाफ्ट बिकॉज ऑफ विच योर व्हीकल इज मूविंग, तो वर्क डन आउटपुट हो गया, और हीट सप्लाई इनपुट है, तो एफिशिएंसी भी हम वही लिखते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट बाय इनपुट अगर हमने लिखा है तो वर्क डन बाय हीट सप्लाई। अब वर्क डन क्या होता है? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, मतलब कितना आपने हीट दिया था और कितना आपने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट मतलब वेस्ट किया। तो हीट सपोज हीट सप्लाई आपने 20 किलो जूल किया और रिजेक्ट किया 5 किलो जूल, इसका मतलब है कि 20 माइनस 5 15 किलो जूल है, वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हुआ एज अ वर्क। इसलिए हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड विल बी यूज्ड एज अ वर्क डन, एंड हीट सप्लाई विल बी योर इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट ही आपका एफिशिएंसी होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करके टेम्परेचर के टर्म में एफिशिएंसी को इक्वेशन, एफिशिएंसी का इक्वेशन लिखेंगे। इसके बाद आपको देखना है कि उसको और फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करें ताकि उसको हम कंप्रेशन रेशियो के टर्म में उसको डिराइव कर सकें। तो कंप्रेशन रेशियो के टर्म में डिराइव करने के लिए भी देखिए ये जो रिलेशन हमने लिखा है, दैट इज relation between temperature and volume for these two processes 1 to 2 and 3 to 4, it is valid only for reversible adiabatic process। मतलब किसी भी साइकिल में आप पहले ये ढूंढो कि उसमें रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा है जिसमें कि एंट्रोपी कांस्टेंट है, उसी प्रोसेस के अक्रॉस आप इस रिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। यस सर। ओके, okay then